Hello student of class 10th. Today's our topic is mode of group data. So students, in your previous classes you have learnt how to find the mean of group data according to various methods such as direct method, assumed mean method and step deviation method. Okay, so today's our topic is to find out the mode of group data. So firstly you write down the formula for finding mode. Okay, so you write mode is equal to lower limit plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2. Okay, multiply by h. Okay friends, where small l is the lower limit of model class. Okay, and f1 is the frequency of model class. Okay friends, so mode is equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into height of the class, and which is h. So you note down what is the meaning of each symbol, such as L. So L is known as lower limit of the model class, and f1 which is the frequency of model class. Similarly, f2 which is the frequency of succeeding model class. Okay, and f0 is the frequency of preceding model class. Okay, and h, so h is the height of class. Okay, or it is also known as size of model class. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको मोड निकालने का फॉर्मूला लर्न करना है कि मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, where L is equal to lower limit of the model class and f1 which is the frequency of model class, f2 is the frequency of succeeding model class, and f0 is the frequency of preceding model class, and h is the height of the class, or it is also known as size of model class. Okay, so this is the formula of mode. So now, for better understanding of this formula, we take an example and apply the formula to find out the mode. Okay, so be careful and try to understand how to apply the formula. Okay,
तो स्टूडेंट्स वी टेक क्वेश्चन नंबर 1 from exercise 14.2. The following table shows that the ages of the patients admitted in a hospital during a year find the mode and mean of the data given below. Okay, now this is the data which is already given. Here is the age which is given in years, and here is the number of patients. Okay, so here is 5 to 15, 15 to 25, then 25 to 35, now 35 to 45, 45 to 55, and 55 to 65. These are the age group, and the number of patients are 6, 11, 21, 23, 14, and 5. Okay. So students, this is the question number 1 from exercise 14.2. Okay, so the table shows that the ages of the patient admitted in a hospital during a year. यानी ये टेबल हमें एक हॉस्पिटल में एक साल के अंतर्गत जो पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनका एज ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे उनकी संख्या दी गई है। तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। तो जो डेटा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसका मीन और मोड दोनों फाइंड करना है। तो स्पेशली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोड के बारे में, तो पहले हम मोड फाइंड करते हैं फिर मीन भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि मीन आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे टेबल में एज जो कि ईयर्स में यहाँ पे दिया है 5 to 15 years, 15 to 25 years, 25 to 35 years, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट है 6, 11, 21, 23, 14 and 5. Okay, so here we need to find out the mode and also mean. Okay, so now look at the solution. Okay, so here is some list space. So we delete the data and again prepare a table. Now look at the solution. Prepare the given table as स्टूडेंट जो टेबल हमें ऑलरेडी दिया है उसको हम अपने तरीके से यहाँ पे अलग से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज इन ईयर्स। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं। तो पहले हमें दो ही कॉलम की रिक्वायरमेंट है मोड फाइंड करने के लिए। ये कॉलम हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि हमें यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है। तो लेकिन पहले हम मोड फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद मीन तो आपने सीखा है।
तो यहाँ पे क्लास इंटरवल के रूप में दे सकते हैं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. Okay? Yes, that's normal. And the number of patients are 6, 11, 21. 6, 11, 21, and then 23, 14, 5. 23, 14, and 5. It is the given information. Okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन दी गई। तो इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मोड फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मोड फाइंड करने से पहले इस टेबल को इस तरह से अरेंज कर लेना है और सबसे पहले आपको एक मॉडल क्लास सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ही आपको एक मॉडल क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और मॉडल क्लास किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो डेटा हमने ऑलरेडी दिया है तो उस डेटा के बीचों बीच यानी उसके बीच में कोई ऐसा हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं जो सबसे बड़ा हो, या अगर मान लेते हैं वो डेटा बड़ा नहीं है तब भी हम जो डेटा हमने यहाँ दिया है उसके बीच में हम किसी डेटा को मान लेते हैं कि वो हमारा मॉडल क्लास है। तो जैसा कि यहाँ पे टोटल कितने हैं डेटा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दिए हैं, तो 6 का हाफ होता है 3। तो यहाँ पे थर्ड टर्म फर्स्ट से थर्ड टर्म लेंगे या लास्ट से थर्ड टर्म लेंगे, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्लास सिंबल बीच में पढ़ते हैं, तो किसी एक को हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा मॉडल क्लास है। स्पेशली जब दो केसेस यहाँ पे दो मिल रहे हैं तो जिसमें से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसी को हम मान लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारा जो है ये मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया है कि ये हमारा मॉडल क्लास। तो आपको भी हर क्वेश्चन में मोड फाइंड करने से पहले एक मॉडल क्लास बीच में सेलेक्ट करने पड़ेगा। अब इस मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, अब इस मॉडल क्लास में जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी हमारी f1 को इंडिकेट करती है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 और मॉडल क्लास से जस्ट पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है ये f0 को इंडिकेट करती है और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी f2 होती है। तो f0 f1 f2 हमें इस मॉडल क्लास को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे तीनों क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो L की वैल्यू फाइंड करते हैं 35 to 45, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 35 है, तो ये हमारी L की वैल्यू हो जाती है। अब हम यहाँ पे आसानी से मोड के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो स्टूडेंट्स सारे डेटा हमें यहाँ पे मॉडल क्लास सेलेक्ट करते ही इस मॉडल क्लास के ऊपर और नीचे सभी डेटा हमें यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ हमने h की वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो h विच इज द नोन एज द हाइट ऑफ द क्लास। तो h क्या होता है, हाइट ऑफ क्लास, यानी ये जो क्लास इंटरवल है 35 to 45 का, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 45 से 35 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो यही जो डिफरेंस होता है दो क्लास इंटरवल के बीच में, तो सॉरी दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, तो इसी को हम हाइट ऑफ द क्लास कहते हैं या क्लास साइज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो h की वैल्यू क्या है 10, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो L, तो आप देख सकते हो L की वैल्यू यहाँ पे 35, लोअर लिमिट क्या है 35 प्लस, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं f1, तो आप देख सकते हो f1 क्या है 23, तो 23 माइनस f0, तो f0 की वैल्यू क्या है 21, ओके, अपॉन 2 इंटू f1 जो कि 23 है माइनस f0 जो कि 21 है और f2 जो है 40, तो माइनस
के बीच का जो इंटरवल है वो 10 डिग्री का डिफरेंस। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 35 प्लस 23 माइनस 21 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू 23 तो 46 माइनस 21 माइनस 14 तो दिस इज इक्वल टू 35 and into 10. Okay, so now look here, this is 35 plus 2 upon 46 minus 35 is equal to 11 multiply with 10. Okay, so this is equal to 35 plus 10 into 2 is 20 upon 11. So it is equal to 35 plus 11 munja 11 munja 11 तो 9 as the carry तो 11 8 जा 88 plus 2 as the carry now 11 munja 11 so it is equal to 36.81. This is the mode of the given data. Okay friends, तो यहाँ से हमने मोड फाइंड कर लिया 36.81 के बराबर इसका मोड आएगा। अब आगे हम यहाँ से इसका मीन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो मोड यहाँ पे नोट कर लेते हैं 36.81 ये हमने फाइंड किया मोड। अब इसी डेटा में हम यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं क्योंकि हमें मेन भी यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जब मेन फाइंड करेंगे तो हमें F1 F2 इन सारी वैल्यूज की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है मेन के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स मेन फाइंड करने के लिए आप जानते हो कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। डायरेक्ट मेथड से मीन हम इसी फार्मूले से फाइंड करते हैं कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ पे fi तो है लेकिन xi नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे xi का कॉलम बनाएंगे, फिर एक जो है f और x की मल्टीपल का बनाएंगे यहाँ पे। तो मिड वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो मिड वैल्यू को ही हम xi लेते हैं और यहाँ पे अगला कॉलम है ये 5 into xi। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं ये आप जानते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 5 plus 15 20 का हाफ 10। ओके, अगेन 15 plus 25 तो 40 का हाफ 20 and this is 30. Now it is 40 50 and 60. These are the mid value of these classes. Now we find out the product of xi and fi. So 6 into 10 is 60. Now 11 into 20 is 220 and 21 into 3 so 630. Now 4 3 is 12. Okay, 4 3 is 12, 4 2 is 8 plus 1 9. So this is the 9 into 20, 14 5 is 17, so it is equal to 17. 5 into 16 is 3. Okay, so now we add frequency and the product of data. So this is written as sigma fi xi. अगर हम इनकी सारी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा fi xi को इंडिकेट करते हैं, तो आइए इसको ऐड करते हैं। 0 plus 0 is equal to 0. Now 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 13, carry 1, 2 plus 6 8, 8 plus 9 17, 17 plus 7 24, 24 plus 3 27 plus 1 carry to 28. 2 plus 6 8, 8 plus 9 17, 17 plus 7 24, 23 to 27 plus 28. So this is equal to 2830 and the total sum of frequency
Okay, this is active. So we have 2830 upon 80. So 1 0 is cancelled with 1 0. Now 8 1 8 and 8 3 is 24. So 4 as a 10. So 8 5 is 40 and 3 as a carry. So 8 3 is 34 and 8 7 is 56. So this is equal to 35.37. It is the mean. Okay. This is the answer. Okay, students. So mean is equal to 35.37 and mode is equal to 36.81. So here is okay, friends. So here is mean, which is 35.37. So now compare mean and mode. So it is so amazing because mean is always greater than mode, but in this question we find out mean is less than mode. So what is the mistake here? So here is no any mistake. Okay, स्टूडेंट्स आप याद रखना हमेशा कि मीन जो होता है किसी भी डेटा का वो हमेशा मीडियन और मोड से बड़ा या उसके बराबर होता है, उससे छोटा कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर आ रहा है। मीन जो है 35.37 और मोड हमारा 36.8 आ रहा है। तो जैसा कि दिख रहा है कि मोड मीन से बड़ा होगा, ऐसा होता नहीं है क्योंकि मीन हमेशा मोड से बड़ा या उसके बराबर तो हो सकता है बट छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि उस हॉस्पिटल में पूरे एक साल के दौरान जो एडमिट होने वाले पेशेंट हैं वो मैक्सिमम जो है 36.8 ईयर्स के ऊपर के, यानी इतने एज के ज्यादातर पेशेंट एडमिट हुए हैं। और यहाँ पे जो मीन यहाँ पे निकला हुआ 35.37 वो हमें ये बता रहा है कि पूरे जो एज ग्रुप के पेशेंट वहाँ पे एडमिट हुए थे उनका एवरेज ईयर्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्या है कि लगभग 35.37 ये उनकी उम्र का एवरेज दिखाया गया है। तो लगभग औसतन इस उम्र के पेशेंट जो है वहाँ पे ठीक है एडमिट थे, यानी पूरा यहाँ पे वो पेशेंट जो 5 ईयर से लेकर के 65 ईयर तक के थे उनका एवरेज यहाँ पे ईयर्स दिया है। बट मोड हमें ये इंडिकेट करता है कि इन सारे एज ग्रुप में सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो वो है 36.8 ईयर्स के पेशेंट सबसे ज्यादा एडमिट हुए हैं। और मीन हमें बता रहा है कि टोटल जो यहाँ पे एवरेज है 5 ईयर से लेकर के 65 ईयर तक के पेशेंट का वो 35.37 है। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, लेकिन आंसर बड़ा सरप्राइजिंग है इसलिए आपको डाउट हो रहा है। ओके, बट इट इज राइट। और दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक अलग से यहाँ पे कहानी को बयां करते हैं। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड मोड and how to find mean of group data. Okay, friends. So it is must compulsory to complete your copy up to exercise 14.2 and bring out in your school after completion of this exercise. Okay. Thank you. Have a nice day.